Hello everyone. So we are here to discuss the next class of fungus, that is Deuteriomycetes. तो ड्यूटेरियोमाइसिटीज को हम फंगस इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फंगस इम्परफेक्ट आखिर हम इसे क्यों कहते हैं, और दूसरी चीज ये कि ये फंगस जो है आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। फंगस का क्लास आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, क्या रीजन है इसके पीछे, उसे जानने के लिए आंसर ये है कि एक्चुअली इस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट है या फिर अगर है तो रिपोर्ट नहीं हुआ। Okay, so this fungus is called imperfect due to the absence of sexual reproduction. If we talk about the occurrence, so this fungal hypha is found in the soil over the dead decay matter. If it is found over dead decay matter, so it belongs to the category saprophyte. That means it's release their enzymes over the dead decay matter, and this after release this enzyme, this matter is going to digest outside the body. This all things will happen, and after the digestion, the digested material will engulf or absorb by the fungal mycelium. Okay, next point is it is parasite. If it is parasite, so it may cause the disease in plant, in animals, or in the human beings also. So the parasite nature, you know, it's getting shelter and food from the host cell. If host cell is plant, so it may cause the disease in the plant. If it is organism, so it may affect organism too. If it is human being, so it may cause the disease in the human beings also. Next point, we take the mycelium. If we discuss about the mycelium, so look, the mycelium diagram is here. It is filamentous, branched and septate. If we are talking about the filamentous, branched and septate mycelium, so same mycelium we have seen in the Basidiomycetes. In this way, this fungus is having some character like the Basidiomycetes. As the fungus, it is having same this filament, it is having same, that is filamentous, branched and septate. Next is the reproduction. One point is also remain here, that is the clump connection. पहले हमें क्लम्प कनेक्शन समझना है। पिछले वीडियो में मैंने क्लम्प कनेक्शन समझाया था। एक्चुअली क्लम्प फॉर्मेशन इज दैट व्हेनेवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द बेसिडियोमाइसिटीज, so here hook like formation forms, and by the help of hook like structures it form a bridge between one cell and another cell. तो इसी ब्रिज की हेल्प से एक एक न्यूक्लियस अगले सेल में ट्रांसफर करके उसे डाइकैरियोन कंडीशन में कन्वर्ट करना ही क्लम्प कनेक्शन कहलाता है। ओके, तो यहाँ क्लम्प कनेक्शन हम लोगों ने बेसिडियोमाइसिटीज में ऑब्जर्व किया, बट इन दिस फंगस दो माइसिलियम इज सिमिलर, दैट इज फिलामेंटस, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, लेकिन इसमें क्लम्प कनेक्शन रिपोर्ट नहीं होगा। ओके, ये डिफरेंस है ड्यूटेरियोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के फिलामेंट में। दूसरी चीज रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एज आई हैव टोल्ड यू, रिप्रोडक्शन हेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, ओनली एसेक्सुअल मेथड स्ट्रेटजी रिमेन हेयर फॉर द रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए इट्स प्रोड्यूस मैनी different type of spores. Spores may be conidia, spores may be oidia or chlamydospores. If oidia or chlamydospores or the conidias are there, so these conidia, oidia and chlamydospores may disperse in the air, and as they get the favorable condition or situation, then it will start germination. Their hypha will form and then mycelium. अगर हम बात करें कोनिडिया की, तो कोनिडिया दो तरीके से यहाँ फॉर्म हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आपके माइसीलियम पर, अगर डायरेक्ट माइसीलियम पर प्रोड्यूस हुए तो ये कोनिडिया फिर डिस्पर्स होकर के माइसीलियम प्रिपेयर करेंगे, या फिर अगर डायरेक्ट नहीं है तो ये कोनिडियोफोर के ऊपर डेवलप होंगे। दैट्स मीन समटाइम कोनिडिया प्रोड्यूस्ड डायरेक्ट ऑन दिस माइसीलियम, आइदर समटाइम दे प्रोड्यूस ओवर द conidiophores. Okay, in all the situation when these spores spread here and there by the help of air current, then they will get to the proper situations or scenario for the germination, then it will start the germination of this spores and finally hypha mycelium will be prepared. तो यहाँ हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ
कहीं भी किसी भी फंगस में रिपोर्ट नहीं हो पाया या फिर एब्सेंट है, तो बेटा यहाँ पे आर्टिफिशियली ये जो क्लास बना वो इसी बिहाफ पे बना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ रिपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी मेंबर इसी डिट्यूरियोमाइसिटीज के किसी मेंबर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर रिपोर्ट कर भी लेते हैं तो वो फाइनली या तो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर जाता है या फिर बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। यही देखिए, द माइसीलियम इज लुक लाइक बेसिडियोमाइसिटीज, लेकिन कोनिडिया फॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो एस्कोमाइसिटीज में भी होता है। तो यहाँ कोनिडियल फॉर्मेशन की वजह से ये फंगस कुछ एस्कोमाइसिटीज यानी ये इन बिटवीन है। दैट्स मीन्स कुछ कैरेक्टर्स एस्को से मिल रहे हैं तो कुछ कैरेक्टर बेसिडियोस्पोर्स से बेसिडियोमाइसिटीज से मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये फंगस कंफ्यूजिंग जो फंगस जितने भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उन्हीं सारी फंगस को लेकर के आर्टिफिशियली ये क्लास प्रिपेयर कर दिया गया है। आई होप सारे पॉइंट आपके ड्यूटेरियोमाइसिटीज से रिलेटेड क्लियर हो चुके हैं। रही बात एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आपके एनसीईआरटी बुक में डिफाइंड है, दैट इज द अल्टरनेरिया and another is the trichoderma, next is the hair coletotrichum. So coletotrichum may cause the disease in the sugarcane, and the alternaria is also creating disease in the plant, and trichoderma in human being skin diseases cause करता है। तो यहाँ तीनों आपके एग्जाम्पल्स हो गए। इसे आप कैट वर्ड से याद कर सकते हो, CAT, C for coletotrichum, A for alternaria and T for the trichoderma। आई होप सारे पॉइंट आपके क्लियर हैं। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिए। 100% आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव योर आंसर एंड बी रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।